یا رسول اللہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب کوئی کسی کا شوہر اس کے گھر پہنچتا ہے، جب اس کی اہلیہ دیکھتی ہے اس کے شوہر کا چہرہ غمگین ہوتا ہے تو وہ ضرور پوچھتی ہے، محبت سے پوچھے یا غصے میں پوچھے کہ اے میرے شوہر آج تم غمگین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، ماحول کچھ اترا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا مولا علی کے چہرے کو، کہا اے میرے شوہر علی، معاملہ کیا ہے؟ ویسے جب تم نبی کی بارگاہ سے آتے تھے تمہارے چہرے پہ نور برستا تھا، تمہارے چہرے پہ رونق ہوا کرتی تھی، تمہارے چہرے پہ حشاشیت ہوا کرتی تھی، آج تم آئے ہو تو تمہارا چہرہ غمگین ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ارے نبی کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا آتا ہے، ارے تو ان کے داماد ہو اور بھائی بھی ہو اولاد، تمہارے اندر کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا فاطمہ سنو، عثمان کے پاس دولت ہے، انہوں نے نبی کی دعوت کی، ان کے نام پر ان غلاموں کو آزاد کر دیا، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں بھی تمہارے بابا جان کی دعوت کرتا، میرا نبی میرے گھر تک آتا، میں قدموں کو گنتا، غلاموں کو آزاد کرتا، میرے دل کو تسلی ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسنین کے والد گرامی بول رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے شوہر بس اتنی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو، ارے جاؤ فوراً جاؤ نبی کی بارگاہ میں پہنچو اور کہنا کل تمہاری دعوت میرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس کے گھر ہے؟ میرے گھر ہے۔ علی پہنچے، آقا نے دیکھا، کہا علی تم پھر کیوں آ گئے؟ کہا حضور آج آپ نے دعوت عثمان کے گھر قبول کی، کل میرے وہاں قبول کر۔ علی بھی جانتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہے، خود نہیں کھاتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ تو علی بھی جانتے ہیں کئی دنوں سے فاقہ ہو رہا ہے، تو کہا جب کھانے کا وقت ہو تو جانا اور بابا جان کو بلانا۔ تو جب کھانے کا وقت ہو گیا مولا علی پہنچے بلانے کے لیے، ادھر آتے فاطمہ سوکھی پتیلیوں کو، خالی پتیلیوں کو چولہے پہ چڑھا دیتی ہیں، ڈھکن کو بند کر دیا، مصلا اٹھایا، وضو کیا، مصلا لیا، بچھا دیا، کہاں رب کی بارگاہ میں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور فرماتی ہیں حضرت فاطمہ اے میرے مولا تو نے میری آبرو بہت رکھی ہے، آج تیرے نبی کی دعوت تیرے نبی کے بیٹی کے گھر میں ہے، اس بیٹی کی، اس فاطمہ کی عزت و آبرو اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو جانے تیرا محبوب جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، جشن امام حسین، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو جانے تیرا محبوب جانے۔ علی پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ فدا کا امی آبی، آقا چلیے تیار ہو گیا کھانا، دسترخوان سجا دیا گیا، آقا نکلتے ہیں، مولا علی اپنے مولا علی سرکار کے قدموں کو گننا شروع کر دیتے ہیں، جتنے قدم علی کے گھر تک پڑے مولا علی نے شمار کر لیے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، آقا بھی تشریف فرما ہے، صحابی بھی تشریف فرما ہے، پلیٹوں کو لگا دیا گیا، کھانا نکالا جا رہا ہے، اب کھانا نکالا جا رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں، مولا علی نے فرمایا حضور بسم اللہ پڑھا جائے، شروع کیا جائے،
सरकार ने शुरू किया, सहाबा ने शुरू किया। जब सरकार खाना खा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, सरकार खा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह, खाने के वक्त में मुस्कुराने की जरूरत क्या, वजह क्या है? और जब सरकार आला हजरत जब इस वाक़ये को पढ़ते हैं तो क्या इरशाद फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलसिता बना दिया। माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं सहाबा, तुमने अंदाजा लगाया है कि इस खाने को किसने बनाया, कौन सा बावर्ची आया, कौन सा कैटरस आया है जिसने इस खाने को बनाया है? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो नहीं जान मिल रहा है कि इस खाने को किसने बनाया है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लग गया है, मैंने जिंदगी में शुरू से लेकर के अब तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। आका फरमाते हैं, अरे साथियों सुनो सुनो, ये खाना दुनियावी खाना नहीं है, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा के सदक़े में जन्नती खाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत से खाना भेजा है। इसीलिए इसका जायका अलग है, इसका टेस्ट अलग है, इसका रंग और रूप अलग है, इसका रंग और रोगन अलग है। और जब खाना हो जाता है हजरत जिब्रील फौरन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है। कहा बताइए, हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उस्मान ने तुम्हारे एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद किया है। आए मेरे आका, मैदान महशर जब कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो जितने कदम आपने मौला अली के घर तक रखे हैं, एक कदम के बदले में एक हजार उम्मती आपका बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मा कुंतो मौला, अली मा अली कुंतो मौला, अली अली हम सबका नारा, अली अली हम सबका नारा, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते फातिमा, नारे फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारे बताओ, अब तुम फैसला करो, जिसके घर में जन्नत से खाना आ जाए उसका पावर क्या होगा? अरे जिनको जिब्रील अलैहिस्सलाम झूला झुलाए, उनके पावर का आलम क्या होगा? अरे जिनके घर मलकुल मौत जाए और दस्तक लगाए, इजाजत ले तब अंदर जाए, अरे ये वही फातिमा है। हजरत इस्राइल जब जाते थे, हजरत फातिमा कहती थी जाओ, आज मेरा बाबा बीमार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान इसी के अल्लाह। है बप्पा के अंदर ये ताकत नहीं नहीं, जो इजराइल को टाल सके, इजराइल को अपने दरवाजे से लौटा दे। अरे ये फातिमा की ताकत है। कहती तीसरा दिन जब आया, आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा अब न कहना। कहा क्यों? कहा ये इजराइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, हुसैनी या है कि नहीं? तो आलम ये, जिसकी माँ का आलम ये हो, जिसकी माँ का आलम ये हो, तो उसके बेटे का आलम क्या होगा यार? माशाअल्लाह, हाँ? आज हमारा बेटा नात पढ़ने लगे और स्टेज पे खड़ा हो जाए तो नोटों की बरसात होगी। क्यों? उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। अरे मौलाना साहब का लड़का तो बड़ी अच्छी नात पढ़ता है, हजरत का नवासा पोता तो बड़ी अच्छी नात पढ़ता है। तो ये समझो कि निस्बत क्या है, उनसियत किससे है, जोड़ किससे है, और उन नस्लों के अंदर पावर कौन सा दौड़ रहा है, किसका खून दौड़ रहा है, किसका दूध चल रहा है और किसका नूर चल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। और एक छोटा सा वाकया मुख्तसरन समझ भैया, ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा पसंद है।
कितना हो गया? 10:35 बस 36 हो गया। बस 5 मिनट और। एक मर्तबा हसनैन करीमैन हैं और अपने वक्त के खलीफा, कौन? खलीफे दो, हजरत उमर फारूक आजम, उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला खेल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में, एक जगह, एक ठिकाना, एक फील्ड। अब आपस में बात बन बिगड़ गई, कभी कभी दोस्तों में तू मैं हो जाती है, लेकिन फिर वो एक हो जाते हैं। बात बिगड़ गई, इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। अरे क्यों ना है जिसकी रगों के अंदर फातिमा का दूध चल रहा हो और जिसका बाप शुजात का पैकर हो। जब जलाल आया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे अब्दुल्ला, तू क्या बात करेगा मुझसे? अरे तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप उमर मेरे नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, अपने वक्त का बादशाह हो और उसके बेटे की ये बेइज्जती कर दी जाए तो उसका चेहरा कितना गमगीन हो जाएगा। कहा यार, हुसैन ने तो बड़ी ऊंची बात बोल दी, गमगीन हो गए अब्दुल्ला। हजरत उमर की बारगाह में पहुंचे, कहा अब्बा जान, हुसैन ने बड़ी बात आज बोल दी है। कहा क्या हो गया? कहा हुसैन कुछ बात चलने लगी। तो हुसैन ने कहा, अरे अब्दुल्ला, तुम मुझसे क्या बात करोगे? तुम मेरे गुलाम हो। अरे तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। कहा अच्छा, ऐसा कहा तुमसे? कहा ठीक है, जाओ उनको बुला के लाओ। इमाम हसन, इमाम हुसैन को बादशाह खलीफे वक्त उमर की बारगाह में पेश किया गया। कहा हुसैन, क्या तुमने ये कहा है कि मेरा बेटा तुम्हारा गुलाम है और मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ? कहा हाँ खलीफे अमीरुल मोमिनीन, मैं उस वक्त भी कह रहा था, आपके सामने भी कह रहा हूँ, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला मेरा गुलाम है और तुम मेरे नाना के गुलाम हो। कहा क्या लिख के दे सकते हो? कहा लिखने की बात क्या है, लाओ कलम कागज में लिख देता हूँ। कलम कागज उठाया, लिख दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ये मेरे गुलाम है और इनके बाप उमर फारूक आजम मेरे नाना के गुलाम। जब पर्चा पढ़ा उमर ने तो उछल पड़े, कूद पड़े। कहा बेटे अब्दुल्ला, फिक्र मत करो, गम मत करो। अरे जिसकी जन्नत में जाने की शहादत हुसैन ने दे, उसको कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हुसैन, जश्ने ईद मिलादुन नबी, हसन हुसैन, हसन हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया हुसैन के मरातिब को घटाने पे तुली हुई है, लेकिन सपारे कुछ नहीं सपरता है। ये इस्लाम का पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। सरकार से सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, जब आप नहीं होंगे तो ये दीन की गाड़ी कैसे चलेगी? इसमें तेल कौन डालेगा, ईंधन कौन देखेगा? कहा मेरे बाद मेरे सहाबा। कहा जब हम नहीं रहेंगे तो कहा मेरे बेटे हुसैन और हुसैन के बाद जो नस्लें मेरी आएंगी इस दीन के परचम को बुलंद करती रहेंगी और मेरी उम्मत के उलमा इस दीन की मशीन को चलाते रहेंगे। कोई काबिल होगा तो कलम के जरिए मेरे इस्लाम को बुलंद करेगा, कोई काबिल होगा तो कलम के जरिए, कोई काबिल होगा तो माइक के जरिए, कोई काबिल होगा तो तकरीर के जरिए, कोई काबिल होगा तो मदारिस के जरिए, कोई काबिल होगा तो तबलीग के जरिए, कोई काबिल होगा तो अल्लाह की मोहब्बत में और अपने आका की मोहब्बत में मेरे इस्लाम की तबलीग को जिंदा। सुभान अल्लाह। आज जो आपके सामने शख्सियत रूबरू है, जिनका नारा हम लगा रहे हैं, उन्हीं की नस्ल से सैयदी सरकार
सैयद अख्तर रजा साहब क़िबला मौजूद है। माशाअल्लाह। 52 पुश्तों से इनका सिलसिला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता। मैंने देखा, मैंने पढ़ा। तो प्यारे, कोई किसी को कितना भी मिटाना चाहे और रब ना चाहे, रब का रसूल ना चाहे, तो क्या कोई मिटा सकता है? कहते घर छूटे, घर बार छूटे, दामन न तेरा सरकार छूटे। दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, लेकिन सरकार आप ना रूठो, दुनिया भी सही आखिरत भी सही। तौबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काट दी।